हो जलाले मुहम्मद است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ درود بحضور جانے جانا حضور جانے جانا جان ایماں رحمت کائنات رونق کائنات میرے آقا و مولا آقا نامدار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار سیدہ آمنہ کے لال بے چین دلوں کے سکون رحمت دارین سید الکونین معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی عظیم عظیم اہل بیت پر آپ کے کریم اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے محبت اور وفائیں کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے۔ آج کا عظیم دن ہے، آج کشمیر ڈے کے لحاظ سے بھی یہ دن منایا جا رہا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں بھی آج کے دن پورے عالم اسلام میں لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں قرآن مجید پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پکی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آپ کے پہلو میں کسی مضمون کو بھی ہم چھیڑیں، کسی کو بھی ٹچ کریں تو اس میں بے مثال اور نایاب ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا جو موضوع ہے وہ بڑا عظیم موضوع ہے اور ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، ان کے بارے میں تو میرے آقا نے بڑا کچھ فرما دیا ہے۔ آپ بس وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کے صدقے دعا ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت کو آمنے سامنے کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے میرے آقا حضور جانے جانا کو اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، ہماری ساری زندگیوں کی عبادتیں روزے حج کٹھے ہو جائیں، ساری زندگی ہم عبادتیں کرتے رہیں تو حضور کے ان غلاموں نے جو ایک سکہ راہ خدا میں دیا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے عظیم وہ لوگ تھے، لیکن آج کے دور میں ان سبھی کو آمنے سامنے کر کے کوئی خارجیت، کوئی رافضیت، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کوئی حضرت علی المرتضیٰ وجہ اللہ الکریم، کوئی آپ کے نواسوں، یعنی کہ ہر طرح نہ فتنہ واریت کا دور ہے۔ لیکن اس دور میں اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اسے در مصطفیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا۔ جب اس در سے نسبت لگ جائے گی،
जब हुजूर जाने जाना के मदीना शरीफ से हमारे कनेक्शन जुड़ जाएंगे, फिर हमें सारी ज़िंदगी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ज़िंदगी में हम जब कहेंगे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या अल्लाह हुजूर जाने जाना की बारगाह में कहेंगे कि हमारे हाल पे रहम फरमाइए। आप दुनिया में हाथ उठाएंगे तो करम होगा, जब दुनिया से जाएंगे तो वद्दुहा का मुखड़ा हमारी आंखों के सामने, और फिर उस मरने का मजा आएगा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तो फिर कमाल वफाई की। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इस बात को ना अशिफा शरीफ में काजी अयाज बाकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और उस किताब के बारे में मैं बारहा मर्तबा आपसे कह चुका हूँ कि ये वो अजीम किताब है जो मेरे महबूब की बारगाह में भी मकबूल तरीन किताब है। किताबें और भी हैं, सियासित्ता हैं जिसमें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा सभी आती हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने अशिफा शरीफ को बड़ा मुकाम दिया है। उसकी वजह यह है कि ये दरबारे मुहम्मदी में मकबूल तरीन किताब है, और मेरे आका ने वो ये अशिफा शरीफ जिस घर में मौजूद हो, गोया कि वो बंदा वक़्त का खुश नसीब इंसान है। उस घर में मेरे आका आते हैं, जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। ये किताब की मकबूलियत है। इस किताब के अंदर ना इस बात को भी नकल किया गया है कि जिस वक़्त हुजूर जाने जाना के दो गुलाम हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, आपका ना किसी मसले के अंदर कोई राय का इख्तिलाफ हो गया, और अमूमी तौर पे मसाइल में इख्तिलाफ हो जाता है। अभी ये मस्जिद आपके इमाम साहब हैं, मैं जुम्मा पढ़ाने के लिए आता हूँ, हो सकता है किसी बंदे को किसी लिहाज से ये इमाम साहब से भी इख्तिलाफ हो, मुझसे भी इख्तिलाफ हो। इख्तिलाफ हर बंदा किसी मसले में रखता है कि नहीं यार ये काम, अब हम जनाब ये मस्जिद का काम करते हैं तो अगर मशवरा ले तो हर बंदा कहेगा नहीं जनाब यहाँ से ऐसे कर लें, ऐसे कोई इत्तेफाक करते हैं, कोई इख्तिलाफ करते हैं। तो कोई ऐसा मसला दरपेश आ गया कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि पता चला कि सहाबा किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर में कोई इख्तिलाफ आ गया है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिस वक़्त आए ना, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त देखा तो मेरे आका की ज़ुबान से जो जुमले निकले, मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह बाअसनी इलैकुम फकुल्तुम कज़ब्ता, फरमाया कि तुम मेरे अबू बकर से इख्तिलाफ करते हो जिस वक़्त मैंने अपने नमूसे रिसालत, अपनी नबुव्वत का दावा किया था, फरमाया था कि हर तरह लोग मेरे खिलाफ हो चुके थे, हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतना लोग मोहब्बत और वफाएं करते थे। आप सादिक व अमीन थे, आपके लक़ब मशहूर थे। आपने फरमाया कि अगर मैं पहाड़ के पीछे तुम सभी को कहूं कि कोई लश्कर आ रहा है और तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तो काफिरों ने कहा कि आप सादिक हैं, अमीन हैं, हम इस बात को तस्लीम करेंगे। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब ने मुझे खातमुन नबीय्यीन का ताज पहना के भेजा है, तो काफिरों ने इनकार करना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया यही वो मेरा अबू बकर है, जिस वक़्त यही वो अबू बकर है जिस वक़्त मैंने अपनी रिसालत का लोगों को कहा कि मेरे ऊपर ईमान लेके आओ, तो अबू बकर ने सर तस्लीम करके कहा सदकता मेरे आका, आप सच फरमा रहे हैं। वो जुबान जिसकी हर बात वही खुदा, आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे आका की जुबान तो कमाल है, हम झूठ नहीं कह सकते। हम हुजूर जाने जाना की जुबान मुबारक से है कौले नबी कौले खुदा, हुजूर जाने जाना की जुबान मुबारक से तो झूठ निकल ही नहीं सकता। फरमाया जिस वक़्त लोग सोचो विचार में थे, लोग सोच रहे थे कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं, उस वक़्त
अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था सदकता, ऐ मेरे आका आप सच फरमा रहे हैं और तुम अबू बकर के साथ राय रखते हो। और जिस वक्त मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया तो बड़े दर्दमाना ये जुमले हैं। अबू जहल ने कहा कि हम हर चीज को तस्लीम करते हैं, मानते हैं। उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया और इस एक उंगली का इशारा मेरे आका की जात की तरफ किया। और मेरा रब तो फिर अपने महबूब से बड़ा प्यार करता है। रब बड़ा गैरतमंद है, हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके महबूब की तरफ कोई उंगली करे रब उंगलियां काट के रख देता है। इस वक्त की ना तो ये बात आ गई जातीजत की, जात की बात आ गई। तो जिस वक्त और भी अंबिया और रसूल ने दावा किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं रसूल हूं। अपने अपने दिफा में लोगों ने कहा कि मैं, लेकिन जिस वक्त अबू जहल ने अबू लहब ने मेरे आका की तरफ उंगली की तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब देना था, लेकिन रब ने फरमाया क्या महबूब जी आप जवाब ना दें, ये आप मेरे लाडले महबूब हैं। हजरत नूह को लोग बातें करते हैं, आप फरमाते हैं इन्नी रब्बुम रसूलुन अमीन, मैं ही रब का बंदा हूँ, रसूल हूँ और सच्चा हूँ। लेकिन जब मेरे महबूब की जात की तरफ अबू लहब ने उंगलियां उठाई, मेरे रब ने फरमाया कि ऐ महबूब जी अगर आपकी जुबान से कोई बात निकलेगी तो लोग कहेंगे हो सकता है ये हदीस सही है, ज़ईफ है, जनाबे वाला मुरसल है, कुछ भी हदीस की किस्में आ सकती हैं। लोग ये भी पूछेंगे कि ये हो सकता है हदीस बुखारी में हो, मुस्लिम में हो, सियासिता में हो। कोई लोग इनकार करेंगे, कोई लोग मानेंगे, लेकिन मेरे रब ने फरमाया महबूब जी आप खामोश रहे। अबू लहब ने की है एक मर्तबा उंगली आपकी तरफ, रब ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ मेरे महबूब आपकी तरफ लहब ने एक उंगली की है, रब उसके दोनों हाथों को काट के रख देता। वो मेरा रब है यार, वो बड़ा प्यार करता है। उसने कहा कि अब जो इसमें इख्तिलाफ करेगा, हदीस में कोई इख्तिलाफ करे, ये कहे कि हदीस सही है, ज़ईफ है, मुसनद है, ठीक है, गलत है, कुछ कह सकता है, लेकिन मेरे रब ने फरमाया अगर मेरे महबूब जी के ऊपर कोई उंगली करे लहब के दोनों हाथ कट जाएंगे। फरमाया अब अगर कोई इख्तिलाफ करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये मेरे रब हैं, ये प्यारे महबूब जी हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम। और कमाल की बात है ना, तेरे उस बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वयक़ूलुल्लज़ी कफ़र लस्त मुरसला। काफिरों को जिस वक्त आज के दौर में हम है ना, हमने हुजूर जाने को देखा नहीं है, लेकिन मोहब्बत का अंदाज और हमारी तड़प ये है कि हुजूर का नाम आता है तो हमारे चेहरे जगमगा जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि यार वही तो दर है जिस दर से ना नहीं है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मन की मुरादें पाएंगे। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि मांगे जाएंगे जो कुछ मिलना है दर मुस्तफ़ा से ही मिलना है। तो ये बात है ना, जब कुरान मजीद में लोगों ने इनकार कर दिया करीम आका अलैहिस्सलाम के, जिस वक्त आपने तो लोगों ने इनकार कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये वो लोग हैं लस्ता मुरसला, इन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन ए महबूब जी आपने इनका जवाब नहीं देना, क्योंकि आप जवाब देंगे तो लोग बाद में हो सकता है इख्तिलाफ करें। मोहब्बत का अंदाज ये है, मेरा रब अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, दुनिया में ना जब से दुनिया बनी है तब से लेके तसुबह क़यामत तक कोई किसी से, कोई महबूब किसी का इतना प्यार नहीं करता होगा जितना रब अपने महबूब से प्यार करता है। मेरे रब ने फरमाया कि ऐ महबूब ये तो कहते हैं कि आप आखिरी नबी नहीं हैं, लस्ता मुरसला, आपको जुटला रहे हैं, लेकिन मैं रब हूं। मैं कुरान में अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐ यासीन के सेहरे वाले तू ही सच्चा रसूल है। यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐ महबूब तू ही आखिरी रसूल है, तू ही पक्का रसूल है। यार वो रब है ना, हम है ना, मेरी बात सुने, हम है जनाब, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, ये जनाब ये मैंने अंगूठी शरीफ पहनी है, इसमें टाइगर ना गया, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत में जनाब इससे पास रख लेता हूँ।
और मैं पहनता हूँ, जिसको जिससे साथ मोहब्बत हो। और जनाब लोग दुनिया में एक दूसरे को तोहफे देते हैं, मुझे जनाब किसी से प्यार है, मैं उसे तोहफा दूंगा। दुनिया में ये चलता है, मजाजी इश्क है। तो कोई तोहफा मिले तो लोग उसे संभाल के रखते हैं कि यार ये ना मुझे तोहफा मिला है, मेरे महबूब ने तोहफा दिया है, और इतना अजीम तोहफा संभाल के रखते हैं। और इससे अगली अगर कोई उस्ताद दे दे तो फिर तो कमाल की बात है। लोग जनाब तारीख भी लिख लेते हैं, सन भी लिख लेते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये तोहफा दिया है। और अगर कोई पानी मिल जाए, हुजूर के दर से निस्बत हो जाए, पानी आ जाए, हम उस पानी का भी अदब करते हैं। ये दुनिया का प्यार है कि कोई तोहफा मिले तो हम इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मेरा रब है, वो अपने महबूब से कितना प्यार करता है। ये सूरत ज़ुखरुफ है, आयत नंबर 88 है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वकील ही या रब्बी, ऐ मेरे बंदो, वकील ही या रब्बी, मेरे महबूब का जो जो नाम लेता है मैं उसका मुंह मुबारक भी सवार देता हूँ। फरमाया दुनिया की मोहब्बतें हैं ना, लेकिन मेरे महबूब से फरमाया कोई प्यार करता है, मैं उसका चेहरा भी सवार देता हूँ, उसके मुकद्दर भी सवार देता हूँ। लेकिन बात यह है कि महबूब जी से प्यार किया जाए, उसके प्यार का। और सहाबा किराम आपने फिर निस्बतें कायम करके दिखा दी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके तो क्या कहने, आपने वफा का वो मुकाम पैदा कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मुकाम हम जनाब ऐसे सर उठाए ना तो हमारे ये इमाम शरीफ पीछे आ जाते हैं। इतनी वफा मेरे आका से और फिर मेरे महबूब के साथ निस्बत थी। और निस्बत का ये फ़ायदा मिला कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी अबू बकर को अपने सीने से लगा के रखा। और सीने से आज हम कहते हैं कि सहाबा किराम से मोहब्बत करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी अलीफ से लेके हज़रत अमीर मुआविया की ये तक हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। यकीन रखें कि जिसका भी हम दामन पकड़ लेंगे वो हमें दुनिया में छोड़ेगा नहीं, बल्कि हमारा दामन पकड़ के हमें जन्नत में साथ लेके जाएगा। और मेरे आका ने सर, ये अशिफा शरीफ है, इसमें हदीस पाक नकल किया गया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। शिफा शरीफ में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन हाफिज़नी फी असहाबी कुन्तु लहु हाफिज़न यौमल क़ियामा। फरमाया कि जो मेरे सहाबा किराम की इज्जत नमूस के ऊपर दिफा करे, मेरे सहाबा से प्यार करे, मन हाफिज़नी फी असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत की हिफाजत करे, फरमाया फिर उसे क़यामत के दिन घबराने की जरूरत नहीं। जब वो मैदान माशर में आएगा, मैं जानू यो वो गुनाहगार जाने, जब वो सामने आएगा मैं पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। और दूसरी जगह पे इसी अशिफा शरीफ के अंदर, इसीलिए तो ये मकबूल ज़माना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अगर ये शिफा शरीफ ना होती तो हमें शफाअत का मज़मून भी समझ ना आता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी जगह फरमाया कि जो मेरे सहाबा किराम से मोहब्बत करे, उनकी नमूस के ऊपर पहरा दे, उनके दिफा में निकले, उनके सामने सर को झुकाए, फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, आबे कौसर पे आएगा, मैं अपने हाथों के साथ उसे जाम पिलाऊंगा, अपने हाथों के साथ। और फिर जरा तसव्वुर करें ना, महबूब जी जब दाम दे रहे होंगे, हाय हाय हाय, सैयदी कमाल कर गए हैं। महबूब जी जब पिला, आप प्याले में जाम पी रहे होंगे, सहाबा किराम के गुलाम आ जाएंगे, और फिर मंजर क्या होगा। कभी बंदा तसव्वुर की दुनिया में जाए, फिर चस आ जाती है। जनाबे वाला महबूब जी के लबों से लगेगा प्याला, वो प्याला जब पीछे होगा, प्याला पीछे होगा, कहा जाएगा मेरे सहाबा के गुलामों को पिलाओ पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मेरे आका ने फरमाया जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मन हाफिज़नी फी असहाबी, जो इनकी हिफाजत में निकले,
आज के दौर में बाबा बड़ी तड़प दे रहे और बड़ी ना दुख होता है कि सहाबा किराम को लोग पता नहीं किस किस तरह की बातें करते हैं। आप यकीन माने जिसने जिसको भी थाम लिया, और उसके लिए शर्त ये है कि किसी सहाबी के बारे में दिल में बुग़्ज़ ना हो। जब दिल बुग़्ज़ से पाक होगा, मोहब्बत दिल में आ जाएगी, फिर घबराने की जरूरत नहीं। फरमाया आबे कौसर पे जाम मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम हैं। और इन्होंने फिर मोहब्बत कमाल की। अशिफा शरीफ के अंदर इस चीज को नकल किया गया। निस्बत जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो जाए, हजरत अबू अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा कितनी करते थे और निस्बत कितनी करते थे। आप तीर चलाया करते थे, नेजाबाजी के आप माहिर थे, तीर बड़े चलाया करते थे। और जो होती है ना कमान जिसमें डाल के तीर को चलाया जाता है, आपके पास हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे मुकद्दरों पे मैं क्या कहूँ कि इतना खुश नसीब कि वो जो कमान मेरे पास आई थी, वो कमान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल फरमाया करते थे। कहते हैं कि पहले मुझे पता नहीं था, जिस वक्त वो कमान मुझ तक पहुंची मुझे पता चला। फरमाते हैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम, वो कमान को बगैर वुजू मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया था। और फिर कमाल ये होता था, कमान मुस्तफा की हो, तीरबाजी अब्दुर्रहमान कर रहा हो। फरमाया दूर दूर तक काफिर होते थे, कमान मुस्तफा से तीर निकलता था, काफिर वासले जहन्नम हो जाया करते थे। निस्बत ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और वो एक जुमला मैंने पढ़ा, कमाल उसने कह दिया। कहते हैं कि इश्क की जो इबारतें हैं ना, ये किताबों से हल नहीं होती, ये मुकद्दर में लिखी जाती हैं तो बंदा महबूब का गुलाम बन जाता है। और हमें प्यार हर एक से करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सिरातल लज़ीना अनअमता, हमें उन लोगों के रास्ते के ऊपर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। अब ये जिन में इनाम हो रहा है, इनमें सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। उन लोगों के रास्ते के ऊपर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। और ये कर्म हो जाता है। कुरान में हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वजह यह है कि हमें ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब दुनिया के आप सारे नबीने इकट्ठे कर लें, नबीने इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उन्हें नूर तो नहीं दे सकते, दुआ कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, हुजूर जाने जाना के बारे में, मुश्किल कुशाई के बारे में इतराज़ात करते हैं, आपकी ज़ात के बारे में ये कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो हज़रत यकूब अला नबी जीना अलैहिस्सलाम आपकी बिनाई चली गई थी। रो रो के हज़रत यूसुफ के हिजर में बिनाई चली गई थी। आप अल्लाह के नबी थे, दुआ मांगते, रब आंखें दे देता, लेकिन रोते रहते थे कि मेरा महबूब, मेरी आंखें चली गई, मेरा बेटा यूसुफ कहाँ है, यूसुफ कहाँ है। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, अल्लाह ने फरमाया इज़हाबू बिकमीसी हाज़ा फ़ाल्कुहु अला वजहि अबी यअती बसीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक उतारी और कहा कि जाके मेरे अब्बा जी को पेश करो। हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कमीज जाती है। ये कमीज वो है जिसे यूसुफ ने अपने लिबास बनाया हुआ था, अपने जेबे तन किया हुआ था। हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोड़ा पकड़ा, पकड़ के आंखों को लगाया, रब ने बनाई अता फरमा दी। ये वो लोग जो कहते हैं कि जनाब कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे तो हजरत यूसुफ की कमीज भी बनाई दे रही है। अब करेगा कुरान का इनकार, जो कुरान का इनकार करेगा वो दारा इस्लाम से खारिज हो गए। हजरत यूसुफ कौन है? अगर हजरत यूसुफ को हुस्न मिलता है तो करीम आका के कदमों के सदके से मिलता है। हजरत यकूब, हजरत इलियास, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत आदम आला नबी जीना अलैहिस्सलाम, ये सभी को अगर नबूवत मिलती है तो मुस्तफ़ा के कदमों के सदके से मिलती है। इनकी कमीज मुबारक अगर आंखें दे सकती है
तो महबूब से निस्बत कर लो, घबराने की जरूरत नहीं। रब का महबूब दामन पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाएगा। ये अपना मयार बनाए, निस्बतें पक्की। और हर चीज, अब दूसरी जगह पे अगर हम इसी कुरान मजीद में देखते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाकया है। 3 मील दूर थी, 3 मील दूर चूंटियां थी, 3 मील दूर थी चूंटियां। और चूंटियां फिर क्या बात है जनाब उनकी, उन्होंने जिस वक्त देखा उनकी जो सरदार थी, तो उसने कहा जी उदखुलू मसाकिनकुम, अपनी चूंटियों से कहने लगी कि आप ना बिलों में चली जाओ। आजकल तो नेट का दौर है, लोग कॉलें भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप सब सारे मामले चलते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था। यहाँ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, वहां से लोग इल्म गैब पे बातें करते हैं। बाबा अपना अकीदा और अपना ईमान, अपना अकीदा ये बनाए कि महबूब के बारे में बात नहीं सुननी, जब मेरे आका का नाम आए तो सर खम कर ले, आपके सर झुक जाएंगे, रब आपके मुकद्दरों को बुलंद कर देगा। चूंटियां आपस में बातें करने लगी कि हजरत सुलेमान का वो आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में तुम पांव के नीचे आ जाओ और तुम्हें कुचल दिया जाए। वो आपस में कहने लगी, चूंटी सरदार कहने लगी। आज के दौर में भी आप किसी चूंटी को उठा के अपने कान में रखें, कोई कुछ जितना मर्जी कान में करें उसकी आवाज नहीं आ सकती, लेकिन ये हजरत सुलेमान है, इनको रब ने ताकतें अता की हैं कि ये 3 मील दूर हैं, चूंटियों की आवाज सुनी, जाके उसी चूंटी को उठाया। लोग कहते हैं कि जनाब बात उसी चूंटी को उठाया और उठा के हाथ पे रख के, कुरान फरमाता है फतबस्समा, हजरत सुलेमान हंसने लगे और कहने लगे कि ये चूंटी समझती है कि अगर मैं बेखबर हूं तो हजरत सुलेमान भी बेखबर है। इसे क्या पता, ये बेखबर है, हजरत सुलेमान का मुकाम क्या है। वो कहती है कि हम बेखबर हैं तो हजरत सुलेमान भी बेखबर हैं। उस चूटी को क्या पता कि रब जिस रास्ते के रब के महबूब चलते हैं, उस रास्ते में जो जो चीजें आती हैं रब उसे भी इल्म गैब अता फरमा देता है। चूटियों को भी पता चल रहा है कि जहां से रब का हबीब गुजर रहा है। हजरत सुलेमान को ये इल्म मिला तो कहां से मिला, ये सारा दरे मुस्तफा से मिला। सही बुखारी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैं मेराज की शब गया तो क्या देखता हूं कि हजरत बिलाल के कदमों की आहट मैंने वहां पे महसूस की। वापसी तशरीफ लाए तो हजरत बिलाल से कहने लगे, क्या बिलाल तेरे कदमों की आहट मैंने वहां पे सुनी है। और यार जरा तसव्वुर करे, जो महबूब जन्नत में जाके कदमों की आहट सुन सकता है, आप लब्बे वाली की सर जमीन पे खड़े होके कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो रब का महबूब ही सुन रहा है। बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन वजह बस ये है कि हमें निस्बत दरे मुस्तफा के साथ सच्ची करनी पड़ेगी। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, आप मौज़ने रसूल थे। आप क्या थे जी? मौज़ने रसूल। निस्बत की बात बताने लगा हूँ, बात पल्ले से बांधे, और आप कोशिश किया करें यार जल्दी तशरीफ लाएं ताकि आपको कुछ दीन की बात आप तक पहुंचे। कम से कम यार बंदा दुनिया से जाए, इतनी तो हुजूर से वफा करके जाए कि घबराने की जरूरत नहीं। कब्र में जाए, फरिश्ते ना कहें कौन है, बल्कि सरकार फरमाए मेरा गुलाम है, पैदा करके जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं हजरत अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हवाले भी मौजूद हैं, जो भाई गूगल नेट यूज करते हैं वो हजरत अबू महजूरा लिखे, उनको सारा वहां पे मुकम्मल आपका वाक्य मिल जाता है। गज़वा हुनैन से वापसी पे ना, ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह पे पड़ाव किया, एक जगह पे पड़ाव किया। निस्बत कितनी चीज है, निस्बत कितना फायदा देती है। ये हजरत महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल अजान दो, हम यहाँ पे नमाज अदा करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो हजरत महजूरा अभी छोटे छोटे बच्चे थे, और बच्चे अमूमन होता है कि नकलें बड़ी उतारते हैं, छोटे बच्चे बड़ों की नकलें उतारते हैं। हजरत महजूरा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आए ना, तो हजरत बिलाल ने अजान दी, हजरत महजूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु पीछे पीछे अजान देने लगे। मोहब्बत की बात ही नकल उतार रहे थे
कहते हैं कि मेरे मुकद्दरों की बात है, मैं नकल उतार रहा था, हुजूर जाने जाना की नजर मेरे ऊपर पड़ी, रब ने मेरे मुकद्दरों की किस्मत ही बदल दी। कहते हैं जनाब जी मैं नकल उतार रहा था, हुजूर जाने जाना की नजर पड़ी, मेरे पीरो मुर्शिद कहते हैं तेरियां तक के अदावा में मुरीद हूँ। कहते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि छोटा बच्चा नकल उतार रहा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पास बुलाया और कहा कि तू क्या अमल कर रहा था। छोटा बच्चा था, डर गया कि पता नहीं अब यहाँ से मार पड़ेगी, लेकिन उसे क्या खबर, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मुहम्मद, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। कोई आए तो सही महबूब के दर के ऊपर। हजरत जनाबे वाला करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत महजूरा कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाया कि तू क्या काम कर रहा था। तो कहने लगे हुजूर जी मैं नकल उतार रहा था। मेरे आका ने फरमाया जरा दोबारा नकल उतारो। वो गुलाम था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरे रहमत पड़ी, वो दोबारा नकल उतारने लगा, नकल उतारता गया, उसके दिल की दुनिया बदलती गई, उसके दिल की दुनिया बदलती गई। जब मेरे आका की नजर हो गई, अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए महजूरा तू चला जा। महजूरा बर्ज करते हैं हुजूर अब मैं कहाँ जाऊं, तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गई। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे जग की खाएं क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। जब महबूब की गली में आ जाए फिर जाना हमने कहाँ है। कहते हैं कि मुझे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शफकत बरे हाथ ना, जहाँ पे ये पेशानी मुबारक के ऊपर, कहते हैं कि शफकत बरा हाथ करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इधर रखा। तो कमाल की बात यह है कि करीम आका ने हाथ रख दिया, मैं बड़ा हो गया, मेरी ड्यूटी लगी, मैं जाके अजानें देने लग गया। मैंने नकल उतारी थी, नकल उतारी थी। बाज नकलें भी बंदे को बड़ा कुरब का सबब बन जाती हैं। नकल उतारी थी हजरत बिलाल की, करीम आका की नजर पड़ गई तो हजरत महजूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं चला गया, मेरी ड्यूटी लग गई। कहते हैं कि हुजूर जाने जाना ने जिधर हाथ मुबारक लगाए थे, हजरत महजूरा ने सारी जिंदगी अपने बाल नहीं कटवाए थे। आपके बाल मुबारक आपके पांव तक आते थे, बाल नहीं कटवाते थे। लोग कहते थे क्या महजूरा तो बाल क्यों नहीं कटवाता। आप फरमाया करते थे कि जिन बालों को मेरे महबूब के हाथ लगे हैं मुझे सुकून ही बड़ा रहता है, मेरा दिल ही नहीं करता कि महबूब के हाथ लगे हो तो मैं बाल कटवा दूं। यार मोहब्बत। और जो सहाबा किराम ये हजरत महजूरा करीम आका के हाथ लगते हैं, हाथ मुबारक लगते हैं तो बाल नहीं कतरवाते। तो जो सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका ने अपने सीने से लगाया होगा, उस अबू बकर से कितना प्यार करते होंगे। लोग आज के दौर में मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में बकवासात करते हैं, अल ईमान अल हफीज। ये तो बात पता चलेगी ना। वो मेरे बाबा जी मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे, हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। कोई वक्त तो आए यार, कभी महबूब से वफाएं तो करें। हमें वफा करने में देर हो सकती है लेकिन वहां से जवाब आने में कोई देर नहीं हो सकती। ये निस्बत हमें अपनानी पड़ेगी। और जिस दौर में हम जी रहे हैं, आप अपने इर्दा गिर्द देखें, शिया हज़रात हमारे ऊपर कितने और किस किस तरह की तौबा नऊज़ बिल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में बातें करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका खातिमा बेड़ा गर्क फरमाए जो मेरे अबू बकर सिद्दीक के बारे में कुछ बकवास करता है। कभी बंदा तसव्वुर की दुनिया में जाए ना कि आज शिये है ना, वो जुलजनान गालबन जुलजना उसका नाम लेते हैं, जिसका बड़ा अदब करते हैं, जिसकी बड़ी तज़ीम करते हैं, तो उनसे पूछा जाए ना कि तुम इनकी निस्बत इससे मोहब्बत क्यों करते हो, किस निस्बत की बिना पे मोहब्बत करते हो, तो वो कहते हैं कि ये उस नस्ल में से है, उस नस्ल में से है जिस पे हजरत इमाम हुसैन बैठे थे। वो कहते हैं हम इसलिए हम जनाबे वाला करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नालैन मुबारक है, उसको सीने से लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलामी का सदका, अपने शेख कामिल की निगाह करम का सदका मैं भी हूँ, तो ये अपने सूट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नालैन पाक बनाता हूँ। ये निस्बत की बात होती है। हमें पता है हम हर वक्त हुजूर के कदमों में हैं,
और जो हुजूर के कदमों में होता है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस निस्बत से वो कहते हैं कि जनाब हम जुलजना को इसलिए तरजीह देते हैं कि इसकी नस्लों के ऊपर हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं। मैं कहता हूं पूछा जाए हुसैन कौन है तो कहते हैं हुसैन हजरत फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हैं, हजरत अली के बेटे हैं। हजरत फातिमा कौन है? ये मेरे आका की शहजादी हैं। अगर हजरत हुसैन बैठे जुलजना के ऊपर तो तुम उसके साथ मोहब्बत करते हो तो उस अबू बकर के ईमान को तोलो जिस अबू बकर के कंधे के ऊपर मेरे मुस्तफा बैठे होंगे, उस अबू बकर की शान का आलम क्या होगा। हजरत हुसैन जहां बैठे शिये उसकी कदर करते हैं। तो जिस महबूब ने अपने गुलाम के कंधों के ऊपर तशरीफ रखे बैठे होंगे, उस अबू बकर की शान व अज़मत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे महबूब ने सारी जिंदगी अपने सीने से लगाया और छोड़ा नहीं। बात यह है कोई निस्बत करके देखे, जो मेरे महबूब का हो जाता है फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं रहती। अगर सारी जिंदगी मेरे महबूब से वफाई की है तो आज मेरे महबूब के पहलू में लेटे हुए हैं। कुत्ते हशर तक भौंकते रहेंगे लेकिन महबूब जी हजरत अबू बकर को अपने सीने से लगाए रहेंगे और क़यामत तक रहेंगे। और जब ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, क़यामत के दिन जब सबसे पहले उठा जाएगा, करीम आका जब कब्र मुबारक से तशरीफ लाएंगे, दाईं तरफ अबू बकर सिद्दीक होंगे, बाईं तरफ हजरत उमर फारूक आजम होंगे। यार इन्हीं का दामन पकड़ ले और दुआ करें कि रब हमें महबूब हुजूर जाने जाना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, जितने भी निस्बतें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं उन निस्बतों से हमें वफा और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जब हमारी निस्बतें पक्की हो जाएंगी फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से हम कब्र में जाएंगे, उधर मेरे महबूब फरमाएंगे यही वो है जो मेरे सहाबा से प्यार किया करता था। अब नारा लगाना है जी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुम या अबा बकरीन, अबू बकर खड़े हो जाओ। अबू बकर खड़े हो जाए। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या बताना चाहते हैं, इनके बारे में क्या फरमाना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया अबा बकरिन फिल जन्ना, फरमाया मेरा अबू बकर जन्नती है। अब जो भी अबू बकर से प्यार करेगा उसे घबराने की जरूरत नहीं, करीम आका भी बख्शवाएंगे। जो अबू बकर के कदमों में चला जाएगा अबू बकर भी उसकी बख्शिश का सबब बन जाएंगे। सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।